नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग मेरीना पार्क एरिया में हैं और हमारे पीछे यहाँ आप देख सकते हैं, इसको पहले जो है चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क बोला जाता था। काफ़ी फेमस जगह है। आपने भी अपने बचपन में यहाँ पर आकर जो है साइकिल का आनंद ज़रूर उठाया होगा। तो इसका जो है आज फिर से इनॉग्रेशन किया गया, इसको रिवैम्प किया गया और फिर से री इनॉग्रेट किया गया। और अब ये जो पुराना चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क है, इसका नाम है सेंटर फॉर ट्रैफिक एजुकेशन एंड सिमुलेशन। अंदर हम आपको बता दें, जो अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ जो है वो जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। जो बच्चे हैं वो अब यहाँ पर आकर ट्रैफिक रूल्स जो है और भी बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। किस तरह से सड़क में गाड़ी चलाना है, किस तरह से ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, ट्रैफिक लाइट्स का क्या क्या मतलब होता है, कौन से लाइट्स का क्या मतलब होता है, किस तरह से क्रॉसिंग में गाड़ी चलाना है और बाकी सारे ट्रैफिक रूल्स अब जो है वो लोग अच्छे से सीख सकेंगे, क्योंकि ये पूरा रिवैम्प किया गया है जो चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क है उसको। और अंदर काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ क्रिएट किया गया है। हम आपको बता दें, एक सिमुलेशन के लिए भी एक पूरा एरिया जो है अंदर बनाया गया है। एक रूम है जहाँ पे काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ जो है वो सिमुलेशन के लिए भी जो है क्रिएट किया गया है। और साथ ही साथ सारे ट्रैफिक लाइट्स अभी यहाँ पे फंक्शनल है। और जो भी सरफेस है वो प्रॉपरली अभी पेव्ड है। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी जो है प्रॉपरली इंस्टॉल किया गया है। To our respective DGP sir, chief guest of today's event, our esteemed IGP ma'am, senior officers of police department, distinguished guests, teachers, and our young friends from JNRM, NCC, and class 3 students of Khalsa Public School. They are sitting in the room inside. It is a heartwarming moment to welcome you all to the inauguration of Center for Traffic Education and Simulation, the evolved and modern avatar of what was once only known as the Children's Traffic Park. When the Children's Traffic Park was first established in 1994, it was built on a simple but powerful idea to teach the importance of road safety not just within the classroom walls but through the real life experience. Even after the devastating 2004 tsunami, which caused severe damage to the park, it again rose in 2005, rebuilt and reopened with renewed energy, continuing its mission to nurture responsible road users from a very young age. Over time, as our roads grew busier, our vehicles faster, and our distractions greater, the need for more immersive and realistic learning becomes clear. Today, under the vision and leadership of our worthy DGP sir, this park begins a new chapter as a center for traffic education and simulation, a modern, interactive, and technology-enabled space that blends education with simulated experience. The new feature includes the car driving simulation room, housed in fully air-conditioned hall, allows visitors to experience real driving scenarios in a safe environment, alongside a curated display that showcases the evolution of vehicles and engines throughout the time. Our television section streams engaging road safety videos and awareness content, while outside the bicycle track with functioning traffic lights and signages recreates the real road conditions for students and practice discipline and safe behavior. Even for the youngest visitors, one can explore the cycle track, which is learning of the basic traffic sense through play and observation over the ground, which is on my right side and your left side. Our simulated environment brings roads to life, from bustling market zone with zebra crossings, schools and hospital zones we have created, where sensitivity and patience are the rule of the road. Each corner is designed to help learners understand how behavior must adapt with the surroundings. Slow near schools, cautious near hospitals, and alerts in markets. Let me also allow to introduce you to the newest members of Traffic Education family. There are two mascots we have created for CTES. That is
just behind that in the center of the park. Their name is Kadak Singh and Hasmukh Lal. They are not just the cartoon figures, but as a metaphor, faces of discipline and friendliness, the perfect blend of Kadak enforcement and Hasmukh education. Together, they will guide our visitors through the park's activities from learning road signs to earning reward points through the dummy driving license reward system. In future, we have plans to host workshops for the school's education, sessions for the government, public transport drivers, traffic volunteers, and other awareness campaigns for the public. Lastly, as we are ready to open this center for the public use, I want to assure you that utmost priority has been given to the safety. Every measure has been taken to ensure that the center operates within the prescribed norms. A comprehensive safety audit has been carried out by the Electrical Division of APWD as well as the Fire Department to guarantee that no aspect of visitor space safety is compromised. Since this facility will be frequented by the children and students, the entire area has been brought under the CCTV surveillance for continuous monitoring. As we stand here today, surrounded by the officers, educators, and students, we celebrate not only an infrastructure, but an idea that the future of road safety begins with the awareness, civic culture, and responsibility. We hope to make this not just a place for lesson, but a living lab of civic sense, where every visitor learns that use of public road is a shared responsibility with every other life on the road. Yes, sir. आप ही दो सिंधु नहीं नहीं आओ सर आप नहीं नहीं आप ही दो मैम with the longest serving traffic. Jajak. Yes, sir.
राजेश बलराम ट्रॉफी दोनों एक एक वो एक लेफ्ट आउट आओ आओ ट्रैफिक आओ टेक द प्राइड अजय तुम भी आओ अजय रिटायरिंग नवंबर तो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा I would like to thank our traffic team जिन्होंने काफ़ी relatively short notice पे ये ट्रैफिक एजुकेशन और सिमुलेशन फैसिलिटी को रेडी किया और बहुत ही फंक्शनल बनाया है। जैसा कि पहले भी मैंने विज़िट किया था तो मेरा मानना यही है कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा तभी है जब वो यूज़फुल हो, सिर्फ उसको दिखावे के लिए हमें नहीं बनाना है। और मीडिया पर्सनल जो हमारे साथ हैं ऑलरेडी दे हैव बीन हाईलाइटिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव्स अबाउट अंडमान पुलिस, तो आई थिंक उसी सिलसिले में आपसे भी हमारी गुजारिश ये रहेगी कि ट्रैफिक एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अंडमान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना होने के बावजूद एक्सीडेंट्स हैं और फेटल एक्सीडेंट्स भी हैं, जो कि बड़ा ही कई बार ऑड लगता है। और उसका रीज़न यही है कि जो ख़ास तौर पे जस्ट टीनेज बच्चे 18 साल के जिनको लाइसेंस मिल गया या 16 पे मिल रहा है, वो 80 सीसी जो पहले होता था कि यहाँ मिलता नहीं है, 80 सीसी टाइप जैसे दिल्ली में यहाँ भी मिलता है, 80 सीसी का होता है, वो यहाँ भी है बिलो 50 सीसी है, बिलो 50 सीसी 16 ईयर्स। तो जो 16 से 18 साल की एज है ख़ास तौर पे एंड स्पेशली 19-20, ये हमारी एज ऐसी होती है बच्चों की कि दे वांट टू समटाइम्स कम्पीट। एक दो ऐसे भी इंस्टेंस हुए हैं नॉर्थ एंड मिडिल की तरफ कि कोई बच्चा शायद थोड़ा बहुत इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में था एंड दे वर रेसिंग एंड काफ़ी सीरियस इंजरीज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ। तो हमारी भी जो रूटीन में अंडमान पुलिस की रात को हमारे लोग जो चेकिंग करते हैं उसमें भी फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट को हमारा ख़ास तौर पे फोकस रहता है कि जो 10 से 12 बजे का टाइम है जब लोग शायद खाना खाने जाते हैं या कई बार कोई बार में बैठ के ड्रिंक भी करता है, चाहे वो मेजर है 19-20 साल का या कॉलेज गोइंग बच्चा है, इन एजेस में ख़ास तौर पे टेंडेंसी रहती है ओवर स्पीड करने की। तो उस चीज़ के एनफोर्समेंट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस एनफोर्समेंट के कारण हमारे जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं और सिंपल एक्सीडेंट्स हैं उनमें थोड़ा हमें बेटरमेंट हुआ है। इसके अलावा जो आज की ये फैसिलिटी है आप भी ज़रूर इसके बाद देखिएगा, मीडिया पर्सनल आप इनको भी सिमुलेशन वगैरह अच्छी तरह दिखाइए। हमारा सारा इसका उद्देश्य ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे आएँ। ये बड़ी प्यारी लोकेशन है, समुंदर और जेटी पास है और पार्क भी बहुत नीटली मेंटेन्ड है, इसको और स्प्रूस अप किया गया है और इसमें हम थोड़ी फैसिलिटीज़ और ऐड करेंगे जैसे गोल्फ कार्ट का या कोई और, ताकि बच्चों को एक बेसिक 4 व्हील्स की गाड़ी का ड्राइव करने का विदाउट एनी रिस्क एक्सपीरियंस हो। और मुझे आज बड़ा हार्टनिंग लगा जबकि हमारे कुछ एसपीज़ ने बताया कि उनके बच्चों ने साइकिल चलाना यहाँ पे सीखा है, तो बड़ी बात है। एक्चुअली साइकिल चलाना आना इज़ मच टफर जैसे हम सब जानते हैं देन टू व्हीलर, बिकॉज टू व्हीलर या मैकेनाइज 4 व्हीलर, बिकॉज एक बार आपको साइकिल बैलेंस करना आ गया तो बाद वाली चीज़ आ ही जाती है। बाद में तो फिर आपको थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना है और उससे रिलेटेड जो डायमेंशन हैं। तो इसके साथ ही मैं फाइनली ये कहना चाहूँगा कि दिस पार्क एंड दिस सिमुलेशन फैसिलिटी अगर साल में वो एक लाइफ भी बचा सके बाय एजुकेशन, द अवेयरनेस, द सेंसिटिविटी, तो वी विल फील कि इससे पर्पस सॉल्व हो गया। क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं तो हम देखते हैं पिछले साल 15 फेटल हुए, इस साल 16 हुए,
लेकिन हम ये नहीं देखते, हमें लगता है अरे बहुत कम अंतर है, लेकिन जिस परिवार का वो एक मेंबर एक्स्ट्रा जिसकी डेथ हुई या कुछ हुआ, उसके लिए दुनिया ख़त्म हो गई। तो इसी तरीके से हमें देखना है। और इंडिया में फेटल एक्सीडेंट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और अंडमान में भी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। मुझे अभी तकरीबन 1 साल प्लस हुआ है, और मैं देखता हूँ कि उसी दौरान मैं देखता हूँ गाड़ियाँ लगातार बहुत बढ़ती जा रही हैं। ट्रैफिक जैम की भी डायमेंशन है, ओवर स्पीडिंग भी है, रैश ड्राइविंग भी है। तो आई थिंक दिस ट्रैफिक education and simulation facility, this will be making a qualitative difference to the kind of traffic awareness we have, and also the traffic movement later on. And once again I am thankful, खास तौर पे सारे जो बच्चे आए गर्मी में और सारे ट्रैफिक स्टाफ और हमारे पुलिस बैंड वाले भी, and entire police team of Andaman Nicobar Police, and lastly again our friends from media, thank you for coming and making it highlighted and reaching to the right audience. Thank you. Jai Hind.